Hello everyone. The topic which we will be learning today is shirts and indices. In this video, we will be learning about what is shirts, what are indices, what all are the laws of shirts and indices, and how to solve various problems related to it, which are asked in various competitive examinations in previous years. So let's start with the concept of your shirts and indices. As we know कि if we are going to multiply say 5 4 times, if we are going to multiply 5 multiplied by 5 multiplied by 5 multiplied by 5, यानी कि यदि हम 5 को 4 times multiply करें, so we write it as 5 raised to the power 4. When we are multiplying 5 4 times, so we are writing it as 5 raised to the power 4, where 5 is known as your base, जहाँ पे हम 5 को बेस बोलते हैं, और जो 4 है उसको हम बोलते हैं either we say it as power or we say it as exponent or we say it as index. So अगर हमने इसी तरीके से यदि एक एग्जाम्पल लें, अगर हमने 2 को लिया 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2, so we will be writing it as 2 raised to the power 5, where 2 is the base and 5 is your power, or we can say it as exponents. So there are some laws of exponents or the indices by which, using these laws, we can solve various problems related to this topic. Suppose there is a question, say a raised to the power m multiplied by a raised to the power n, यानी कि यदि हमारे पास दो नंबर्स हैं जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिनके बेसिस सेम हैं, over here your base is a, over here also your base is a, यदि बेस सेम है और पावर्स डिफरेंट है या डिफरेंट नहीं है, सेम भी है, और यदि मल्टीप्लिकेशन साइन है इन बिटवीन, सो वी आर गोइंग टू ऐड द पावर्स. यानी कि यदि हम बोले कि यदि हमारे पास है 2 raised to the power 5 multiplied by 2 raised to the power 3, यहाँ पे बेस हमारे पास 2 सेम है, यहाँ पे 2 की पावर है 5, यहाँ पे 2 की पावर है 3. सो इफ दिस टाइप ऑफ केसेस आर देयर इज मल्टीप्लिकेशन साइन इन बिटवीन, सो वी कैन राइट इट एज 2 raised to the power 5 plus 3, that is your 2 raised to the power 8. यानी इसको हम सॉल्व करेंगे, सो इट विल बी योर 2 raised to the power 8. सिमिलरली अगर हमारे बेसिस सेम है, पावर्स सेम भी हो सकती हैं और अलग भी हो सकती हैं, एंड इफ देयर इज डिवीजन साइन इन बिटवीन, इन दैट केस वी आर गोइंग टू सबट्रैक्ट द पावर्स. दैट मीन्स इफ आई एम टेकिंग दिस ओनली द केस 2 raised to the power 5 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 3, बेसिस सेम है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 2 की पावर 3 है, और देयर इज डिवीजन साइन इन बिटवीन, सो वी विल बी सबट्रैक्टिंग द पावर्स, सो इट विल बी 2 raised to the power 5 minus 3, that is 2 raised to the power 2 will be the answer. If we are going to solve it, the answer will be 2 raised to the power 2. Now suppose if there is any of the base a, whole raised to the power some power is there, and whole raised to the power some other power is even there, then we will be multiplying the power. That means if it is your 5 raised to the power 3 and whole raised to the power 2, suppose, in that case 5 raised to the power 3 multiplied by 2, that means it could be written as 5 raised to the power 6. अगर इस तरीके की situation है, then we will be multiplying the powers. अगर कोई बेस है जिसकी निगेटिव पावर है, सपोज आई एम सेइंग इट इज योर 3 raised to the power minus 5, तो इन दैट केस हम रेसिप्रोकेट करेंगे नंबर को एंड हमारी जो पावर होगी वो पॉजिटिव हो जाएगी, यानी कि इट कुड बी रिटन एज 1/3 raised to the power 5 even, और वी कैन राइट इट एज 1/3 raised to the power 5 ऑल्सो. मीन्स ये जो नंबर हमारा न्यूमरेटर में है उसको यदि हम डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो हमारी जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, वो पॉजिटिव हो जाएगी. So if it is the case a raised to the power minus m, so it could be written as 1/a raised to the power m. If there are two numbers like a and b and whole raised to the power some number is there, in that case we can write it separately also. So it could be written as a raised to the power n multiplied by b raised to the power n. Suppose we are saying it is your 2 multiplied by 3 whole raised to the power 5. So it could be written as 2 raised to the power 5 multiplied by your 3 raised to the power 5. अगर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन में ब्रैकेट में है and whole raised to the power some number is there, in that case we can write it separately also. Similarly, instead of multiplication, if the numbers are in division and they both are having the same power, so we can separately write it even. Suppose it is your 5/7 raised to the power 3. So it could be written as 5 raised to the power 3 divided by 7 raised to the power 3.
इफ देयर इज एनी बेस विद द पावर 0, अगर कोई भी बेस हो यदि उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है. सपोज आई एम सेइंग इट इज 535 रेज टू द पावर 0, सो इट्स वैल्यू विल बी 1. किसी भी बेस की पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है. सो दीज आर सम ऑफ द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इंडाइसेस which we will be using while we will be solving the questions. Now let's understand what is surd. See, when we are saying square root of say 3, that means what this sign is, your square root sign, so it means your 3 raised to the power 1 upon 2. If we are saying cube root of say 7, in that case this means your 7 raised to the power 1 upon 3. ये जो आपका साइन है इस साइन को हम बोलते हैं रेडिकल साइन बोलते हैं, और यहाँ पे ये क्या है, थर्ड रूट ऑफ 7 है. दैट मीन्स अगर हम इसको रिमूव करेंगे इस साइन को, सो पावर ऑफ द 7 विल बी योर 1 अपॉन 3. सिमिलरली इफ इट इज योर nth रूट ऑफ a का nth रूट निकालना है, सो इट्स वैल्यू विल बी a रेज टू द पावर 1 अपॉन n. यदि इस तरीके का कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, a कुड बी योर एनी रेशनल नंबर, अगर इस तरीके का है तो इट्स वैल्यू विल बी a रेज टू द पावर 1 अपॉन n, जहाँ पे a हमारा कोई रेशनल नंबर है और n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है. यदि इस तरीके का केस होता है तो nth रूट ऑफ a इट इज नोन एज योर शर्ड and its order will be your n. It is known as your sherd and its order will be your n. And the value of this should be your irrational number. अगर हम बात करें square root of 4 की, तो square root of 4 को यदि हम solve करेंगे, so its value will be 2, which is a rational number. So square root of 4 is not a sherd because its value is your 2. लेकिन यही हम बात करें यदि स्क्वायर रूट ऑफ 5 की, तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 को यदि हम सॉल्व करें, मतलब 5 का यदि हम स्क्वायर रूट निकालें, सो जो वैल्यू हमारे पास आएगी दैट विल बी अ इरेशनल नंबर, सो इट इज नोन एज योर शर्ड्स. सिमिलरली इफ आई एम गोइंग टू से क्यूब रूट ऑफ 27, so we know that the cube root of 27 is your 3, because if we are going to multiply 3 multiplied by 3 multiplied by 3 we will be getting 27. So cube root of 3 will be your 3. That's the reason it is not a sherd. But instead of this, if I am going to write cube root of say 29, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी अ इरेशनल नंबर, एंड सच टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशंस आर नोन एज योर शर्ड्स. इनको हम बोलते हैं शर्ड्स बोलते हैं. अब देयर आर सम लॉज ऑफ शर्ड्स इवन, लाइक जस्ट नाउ वी सेड इफ इट इज योर nth रूट ऑफ a, यदि हम nth रूट ऑफ a निकाल रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर 1 अपॉन n. जैसे स्क्वायर रूट में पावर विल बी 1 अपॉन 2, क्यूब रूट निकाला मतलब यहाँ पे 3 लिखा है तो इस पावर विल बी 1 अपॉन 3. सिमिलरली यहाँ पे यदि कोई वैल्यू n है, कोई नंबर n है, पॉजिटिव नंबर n है, इन दैट केस इट्स वैल्यू विल बी a रेज टू द पावर 1 अपॉन n. अब सेम लॉज जो हमने यहाँ पे देखे थे, यदि nth रूट ऑफ a इंटू b है तो हम इसको सेपरेटली भी लिख सकते हैं. यानी सपोज योर क्यूब रूट ऑफ से 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 इट इज, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी क्यूब रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाइड बाय क्यूब रूट ऑफ योर 7. मतलब हम सेपरेटली यदि इन दोनों की वैल्यू निकालें और उसको मल्टीप्लाई करें तो जो आंसर आएगा वो इसके इक्विवेलेंट. अगर 5 मल्टीप्लाइड बाय 7, 5 7 इज 35, यदि हम 35 का क्यूब रूट निकालें इंडिविजुअली, या फिर हम 5 का क्यूब रूट निकालें और 7 का क्यूब रूट निकालें, उनको मल्टीप्लाई करें, दोनों ही केस में हमारा जो आंसर आएगा वो सेम आएगा. सो दिस कुड इवन बी रिटन एज दिस पार्ट इवन, मतलब यदि दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो हम इनको सेपरेटली भी लिख सकते हैं. सिमिलरली यदि डिवीजन में है दोनों ही पार्ट्स, इन दैट केस हम अगेन इनको सेपरेटली भी लिख सकते हैं. इफ इट इज nth रूट ऑफ a अपॉन b, सो इट कुड बी रिटन एज nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b. सपोज इट इज योर 2 अपॉन 3, nth रूट मतलब फोर्थ रूट है इसका, अगर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सो इट विल बी फोर्थ रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय फोर्थ रूट ऑफ 3. सेपरेटली भी हम इन नंबर्स को लिख सकते हैं. इफ इट इज nth रूट ऑफ a एंड होल रेज टू द पावर n, तो इसकी वैल्यू a के ही इक्विवेलेंट होती है. जैसे हम कहते हैं कि यहाँ पे हमने केस लिया 27 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 3 भी लिख सकते हैं. 27 could be written as 3 raised to the power 3, और इसका होल का हमें क्यूब रूट लेना है, दैट मीन्स इट्स वैल्यू विल बी 3 ओनली. सिमिलरली यदि हमारे को a का nth रूट निकालना है और होल रेज टू द पावर n ही है तो उसकी वैल्यू a ही आती है. कैसे आएगी, देखिए यदि हम इसको सॉल्व करें
तो हम इसको क्या लिखेंगे, a रेज टू द पावर 1 अपॉन n लिखेंगे। यहाँ पे हमने देखा था कि nth रूट ऑफ a की मतलब क्या हुआ, a रेज टू द पावर 1 अपॉन n हुआ। अब इस पार्ट को जो ब्रैकेट के अंदर है इसको हमने लिखा a रेज टू द पावर 1 अपॉन n एंड होल रेज टू द पावर n इज देयर, होल रेज टू द पावर n। अभी हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स देखा कि यदि a रेज टू द पावर m हो, होल रेज टू द पावर n हो, सो इट कुड बी रिटन एज a रेज टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाय n, यानी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी कि a रेज टू द पावर 1 अपॉन n मल्टीप्लाइड बाय n and n is going to cancel, a रेज टू द पावर 1 और we can say its value will be your a itself। यानी कि यदि हमें फिफ्थ रूट ऑफ 25 निकालना है एंड होल रेज टू द पावर 5 है, इसकी वैल्यू 25 ही होगी। नाउ इफ योर टर्म इज लाइक दिस, nth रूट ऑफ a एंड अगेन इट्स mth रूट वी हैव टू फाइंड, तो इसकी वैल्यू nth रूट ऑफ a के इक्विवेलेंट होगी। कैसे होगी, पहले हम इनर यदि देखें, इनर साइड, सो इसकी वैल्यू क्या हुई, a रेज टू द पावर 1 अपॉन n। जो ये वाला पार्ट है इसकी वैल्यू क्या है, a रेज टू द पावर 1 अपॉन n। अब इसका हमें mth रूट निकालना है। mth रूट मतलब होल रेज टू द पावर 1 अपॉन m, दैट मीन्स a रेज टू द पावर n होल रेज टू द पावर 1 अपॉन m। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, सो इट विल बी 1 अपॉन a रेज टू द पावर 1 अपॉन m इंटू n। और 1 अपॉन, अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करें तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, a raised to the power 1 upon m into n. So this could even be written as this much. Now the last is, if it is your nth root of a and whole raised to the power m is there, तो nth root of a का मतलब क्या हुआ, a raised to the power 1 upon n और इसकी पावर क्या है m। अब यदि a raised to the power m whole raised to the power n होगा तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो it will be your a raised to the power m upon n। अब a रेज टू द पावर m को हमने अंदर ले लिया और जो 1 अपॉन n है, मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, a रेज टू द पावर m एंड होल रेज टू द पावर 1 अपॉन n भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, आपका nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर m हो जाएगा। सो दिस पार्ट कुड इवन बी रिटन एज दिस। सो दीज आर सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और लॉज ऑफ शेयर्स और इंडाइसेस, एंड दीज फॉर्मूलाज, दीज लॉज विल बी यूज्ड इन सॉल्विंग वेरियस प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द टॉपिक। Now let's understand how to solve the questions related to the concepts we have learnt just now. So here is the question number 1. 961 raised to the power 1 upon 2 minus 400 raised to the power 1 upon 2 minus 1225 raised to the power 1 upon 2. It is equivalent to 1600 raised to the power 1 upon 2 minus question mark of your square. Square of the question mark. Now what will come in place of your question mark, that we have to find it out. So 1 upon 2 means we have to find the square root. Everywhere it is your power 1 upon 2, 1 upon 2, 1 upon 2. That means we have to find the square root of all these numbers. We know how to find the square root of the numbers. 961, अगर हम long division method use करें, तो in that case we will be making pairs from the right hand side. तो पहला pair बनेगा हमारा 61 का, second will be your 9. So 9 को हम लिखेंगे 3 multiplied by 3 is your 9. सब्ट्रैक्ट किया 9 में से 9, इट विल बी 0, सो हम 61 को वापस यहाँ पे लेंगे। 3 में हमने 3 ऐड किया, सो इट विल बिकम योर 6। अब 61 ही चाहिए, तो हम विल बी राइटिंग 1 ओवर हियर एंड 1 ओवर हियर, तो 61 मल्टीप्लाइड बाय 1 विल बी योर 61, रिमाइंडर इज 0। सो स्क्वायर रूट ऑफ 961 इज योर 31। दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 961, इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 31 लिख सकते हैं। 400 का देखें तो लास्ट के 2 zeros हैं, दैट मीन्स स्क्वायर रूट में 1 0 आ जाएगा। और यदि हम 4 का देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज योर 2, दैट मीन्स 400 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, 20, सो इट विल बी योर 20 माइनस 1225। 1225 का यदि हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें तो 1 पेयर विल बी ऑफ 25, अनदर पेयर विल बी ऑफ योर 12. So 3 3s are 9 and 4 4 is 16. So 16 is greater than your 12. So we will be taking 3. 3 3s are 9. Subtract किया तो it will be your 3. Then 25 हम यहाँ पे ले लेंगे. Plus 3 किया, 3 में 3 ही ऐड किया, it will become your 6. अब हमें यहाँ पे 5 चाहिए. तो 5 कब आएगा, जब हम यहाँ पे 5 लेंगे तो 5 multiplied by 5 will be your 25. So we will be taking 5 over here. So we have to write 5 here also. 65 multiplied by 5. 5 5 is 25, carry over 2, 5 6 is 30 and 2 is your 32. So it will be square root of 1225 का square root क्या आएगा,
35 आ जाएगा. सो वी कैन राइट ओवर हियर 35. 1600 देखें तो लास्ट के 2 zeros, दैट मीन्स अगर इसको रिमूव करेंगे तो स्क्वायर रूट में 1 0 आ जाएगा. और 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, बिकॉज 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज 16. तो 1600 का स्क्वायर रूट क्या होगा 40 हो जाएगा. इट विल बी योर 40 minus question mark. Instead of question mark I am writing x, so we have to find the value of your x. Now if we will be solving it further, 31 minus 20 we will be doing, so we will be getting 11 minus 35. This 40 even I am taking, okay, let it be, we will be taking x square over here and 40 and this much part over right hand side. So it could be written as 40 minus x square. 11 minus 35 is equivalent to 40 minus x square. अब यदि हम इसको further solve करें तो 11 minus 35 will be minus of 5 minus 1 will be your 4 and then it will be your 24. It is equivalent to 40 minus x square. अब हमने इस x square को तो लिया लेफ्ट हैंड साइड में और minus 24 को लिया हमने राइट हैंड साइड में, जिससे कि सब कुछ पॉजिटिव हो जाए. So it will be your x square, it is equivalent to 40 plus 24. That means x square की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 64 हो गई. एंड 64 could be written as 8 square. 8 is 64. So x square is equivalent to your 8 square. यदि हम कंपेयर करेंगे so we will be getting the value of x as your 8. तो x यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या रिप्लेस होगा, it will be your 8. Now the next question is, if 3 raised to the power x plus y, it is equivalent to 81 and 81 raised to the power x minus y is equivalent to 3. Then find x. So see 81 को हम क्या लिख सकते हैं, यदि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें. So see 3 2s are 6, 3 7 is 21, 3 9 is 27, 3 3s are 9, 3 1. So this is even one of the method of finding the square root. अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे 2 के पेयर्स बनाएंगे. So एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, यानी कि इसमें से हम एक 3 को बाहर ले सकते हैं, इसमें से एक 3 को हम बाहर ले सकते हैं. अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना होगा तो हम इस तरीके से निकालेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है 81 को 3 की पावर के फॉर्म में लिखना है, बिकॉज यहाँ पे हमारा बेस 3 है, हमें यहाँ पे भी बेस 3 चाहिए. यानी 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 could be written as 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं. ये तो है, हमने बताया कि किस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन से हम 81 का स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं. बट हमें यहाँ पे करना क्या है, यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना है, यहाँ पे हमें 81 को 3 की पावर्स के फॉर्म में लिखना है. सो 81 could be written as 3 raised to the power 4 because 81 का प्राइम फैक्टराइजेशन is 3 into 3 into 3 into 3. That means it could be written as your 3 raised to the power 4. तो हमने पहला ये वाला पार्ट लेते हैं, इसमें हमने लिखा 3 raised to the power x plus y. It is equivalent to 81 could be written as 3 raised to the power 4. दैट मीन्स अगर बेसिस सेम है दोनों तरफ, LHS पार्ट में भी RHS पार्ट में भी, तो वो कब पॉसिबल है, जब आपकी पावर्स भी इक्वल होंगी. यानी यहाँ से वी कैन कंक्लूड दैट x प्लस y की जो वैल्यू होगी दैट विल बी योर 4. दिस इज योर फर्स्ट पार्ट. नाउ वी आर टेकिंग द सेकेंड पार्ट. अगेन 81 इज हियर. 81 कुड बी रिटन एज 3 रेज टू द पावर 4. तो 81 को हमने लिखा 3 रेज टू द पावर 4 होल रेज टू द पावर योर x माइनस y. और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू द पावर 1 भी लिख सकते हैं. अब यहाँ से यदि हम कंपेयर करें, पहले हम इसको इस पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं. 3 रेज टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय x विल बी योर 4x. 4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस y विल बी माइनस ऑफ 4y. This could be written as 3 raised to the power 4x minus 4y. It is equivalent to your 3 raised to the power 1. अब अगेन LHS और RHS में बेस सेम है, यानी कि पावर्स भी इक्वल होंगी. सो वी कैन से 4x minus 4y it is equivalent to your 1. अब देखिए, यदि हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, यदि हम इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे x और y के कोफिशिएंट्स इक्वल हो जाएंगे. तो हमने इस वाले इक्वेशन को, सपोज इक्वेशन नंबर 1 है और सपोज ये इक्वेशन नंबर 2 है, इस इक्वेशन को हमने 4 से मल्टीप्लाई किया. सो दिस विल बिकम 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 4 4 इज योर 16. दिस इज योर इक्वेशन नंबर 3. अब यदि हम इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर दें, इन दोनों इक्वेशंस को यदि हम ऐड करें तो क्या होगा, मैं इस वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिखती हूँ, 4x माइनस 4y इट इज इक्विवेलेंट टू 1. ये इक्वेशन नंबर 2 हमने यहाँ लिखा. अब इन दोनों को यदि हम ऐड करेंगे तो ये प्लस 4y, ये माइनस 4y कैंसिल हो जाएगा. 4x प्लस 4x विल बिकम योर 8
x and 16 plus 1 will become your 17. 4x 4y 4 माइनस 4y दोनों तो कैंसिल हो गए बिकॉज एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है. अब हमने ऐड किया 4x प्लस 4x को तो ये 8x हो जाएगा और 16 प्लस 1 किया तो हमारे पास ये 17 आ गया. यानी कि x की वैल्यू कितनी हो गई 17/8 हो जाएगी. What will be the value of x? X will be your 17/8. So this is how we can find it out. जो हमारा बेस है हमें कोशिश ये करनी होती है कि हमारे दोनों ही साइड बेसेस सेम हो जाएं. अब वी नो कि 81 को हम 3 के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब 3 बेस रेज टू द पावर 4 लिख सकते हैं. So we will be converting 81 as the power of your 3. And then we will be solving it. We will be comparing the powers and we will be solving it further. Now the next question is 9 raised to the power 3 multiplied by 81 raised to the power 2 divided by 27 raised to the power 3. It is equivalent to 3 raised to the power what? Again I am taking this as your x suppose. यानी हमें की x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. See 9 को भी हम 3 की पावर 3 के बेस की फॉर्म में लिख सकते हैं. 81 को भी हम 3 के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं. 27 को भी लिख सकते हैं. So 9 could be written as your 3 multiplied by 3. So 9 could be written as 3 raised to the power 2 whole raised to the power 3 because 9 raised to the power 3 it was there. So हमने whole raised to the power 3 कर दिया. 81 को भी हमने जस्ट देखा कि 81 को हम 3 raised to the power 4 लिख सकते हैं. So we have written 3 raised to the power 4 81 को लिखा and whole raised to the power 2 कर दिया. Divided by 27 को हम लिख सकते हैं 3 multiplied by 3 multiplied by 3 that means 3 raised to the power 3 हम लिख सकते हैं. So 21 को 7 को लिखा हमने 3 raised to the power 3. 27 could be written as 3 multiplied by 3 multiplied by 3 that means 3 raised to the power 3 we can write 27 as and whole raised to the power 3. It is your 3 raised to the power x. Now just now we have seen कि यदि हमारे बेसिस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं और डिवीजन का साइन हो तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं. सो वन मोर स्टेप वी कैन राइट इट एज 3 raised to the power यहाँ पे 2 multiplied by 3 करेंगे it will be 6 multiplied by 3 raised to the power 4 multiplied by 2 will be your 8 divided by है so we are taking this over here 3 raised to the power 3 multiplied by 3 will be your 9. It is equivalent to 3 raised to the power x. अब मल्टीप्लिकेशन है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी और डिवीजन है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी क्योंकि बेस हमारे पास सेम ही है 3 ही है. So this part LHS part could be written as 3 raised to the power 6 plus 8 minus your 9. It is equivalent to 3 raised to the power x. अब हमने 6 plus 8 किया it will be 14 and 14 minus 9 किया तो it will be your 5. That means 3 raised to the power 5 is equivalent to 3 raised to the power x. दोनों ही तरफ हमारे बेसिस सेम हो गए हैं यानी कि पावर्स को हम इक्वेट करेंगे and from here we can say that the value of x will be your 5. So this is how we can use the laws of exponents and we can solve various questions. Now let's understand some more questions related to it. So here is the question number 4. 125 raised to the power 1 upon 3 multiplied by 4 raised to the power minus 1 upon 2 plus 4 multiplied by 216 raised to the power 1 upon 3 multiplied by 10 raised to the power 0 divided by 4 square divided by root 64. We have to find its value. So see 125 अगर हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करें so 125 could be written as 5 2s are 10, 5 5 is 25, 5 5 is 25, 5 1 is 5. यानी 125 को हम लिख सकते हैं 5 raised to the power 3. तो हमने 125 को लिखा 5 raised to the power 3 and whole raised to the power it is your 1 upon 3. 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 raised to the power 2 लिख सकते हैं. तो हमने 4 को लिखा 2 raised to the power 2 and whole raised to the power minus 1 upon 2 plus 4 216 यदि हम 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें so it will be 2 2 1 is 2 2 8 is 16 2 5 is 10 54 2 2 4 2 7 is 14 3 9 is 27 3 3s are 9 3 1. So अगर हमने 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया so it is your 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. यहाँ पे पावर क्या है 1 upon 3 है यानी कि हमें इसका क्यूब रूट निकालना है. क्यूब रूट निकालना है सो विल बी मेकिंग पेयर ऑफ 3 3. तो हमने यहाँ पे 3 का पेयर बनाया तो ये 3 2s हैं हमारे पास ये 3 3s हैं हमारे पास. तो यदि हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो इन 3 जो 2s हैं उसमें से 1 2 विल कम आउट. ये जो 3 3s हैं उनमें से 1 3 विल कम आउट.
So cube root of 216 will be 2 multiplied by 3, that is your 6. या फिर हम कह सकते हैं कि 216 को हम 6 multiplied by 6 multiplied by 6 भी लिख सकते हैं, 6 का क्यूब भी लिख सकते हैं. So we will be writing is at 6 cube whole raised to the power 1 upon 3. Any base power is 0. अगर कुछ भी बेस हो पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है. So multiplied by 1, so we are ignoring it. Divided by 4 square. 4 could be written as 2 raised to the power 4 square it is. So square means your 16. 4 square means 4 multiplied by 4, that is your 16. और यदि हम 64 का स्क्वायर रूट निकालें तो वी नो दैट द 8 multiplied by 8 is your 64. So square root of 64 will be your 8. अब यदि हम इसको डिवाइड करें 16 divided by 8 it will be your 2. So this could be written as your 2 even. Now 5 raised to the power 3 whole raised to the power 1 upon 3. तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. 3 को यदि हम 1 upon 3 से मल्टीप्लाई करेंगे both are going to cancel, it will be your 5. Multiplied by 2 raised to the power 2 whole raised to the power minus 1 upon 2. So 2 and 2 is going to cancel, it will be 2 raised to the power minus 1. Plus 6 raised to the power 3 multiplied by 1 upon 3. 3 and 3 is going to cancel, it will be your 6 only. And 6 multiplied by 4 is your 6. 4 is 24. Divided by this part will be your 2. This will be your 2. Now if we will be solving it further, 2 raised to the power minus 1. That means अगर हमें पावर को पॉजिटिव करनी है तो we will be reciprocating the number. So 2 को हम लिखेंगे 1 upon 2 raised to the power 1. That means ये हो जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 upon 2 raised to the power 1 means we can write it as 1 upon 2 even, plus 24 divided by 2 will be your 12. 24 को यदि 2 से डिवाइड किया तो we'll be getting 12. ये पार्ट हो गया हमारे पास 5 upon 2 plus 12. Now what we will be doing is we will be taking LCM. So LCM will be your 2. It is your 5. 12 2s are 24. 24 plus 5 will be your 29 by 2 will be the answer. So this is how we will be solving it. अगर हमारे पास इस तरीके के नंबर्स हैं, पावर कुछ भी आपकी 1 upon 3, 1 upon 5 इस तरीके की है तो we will be doing the prime factorization and then we will be converting your number in terms of its prime numbers. Now the next question is root of 17 minus 4 root 15 plus root of 8 minus 2 root 15. अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं then it is going to convert in any square. किसी स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट होगा. So first of all you have to see it properly. You have to check it कि किसका स्क्वायर बन सकता है. तो सी या तो a plus b का होल स्क्वायर बनेगा या फिर a minus b का होल स्क्वायर बनेगा मोस्टली केसेस के अंदर. तो अगर ये वाला पार्ट माइनस का 2ab, बिकॉज माइनस का साइन है यानी कि माइनस का 2ab में कन्वर्ट हो रहा है, यानी इस 4 में से एक 2ab की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास 4 रूट 15 आ रही है. 4 रूट 15 आ रही है यानी कि इस 4 को हम 2 into 2 भी लिख सकते हैं, यानी इस 2 को तो हम हटा देते हैं, यानी ab की जो वैल्यू है वो 2 रूट 15 है. यानी कि रूट 15 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय 5 लिख सकते हैं. यानी कि यदि हम एक नंबर को सेपरेट कर लें 2 रूट ऑफ 3 कर दें और एक नंबर मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 5 कर दें, तो यदि हम 2 रूट ऑफ 3 को स्क्वायर करेंगे, 2 रूट 3 का स्क्वायर किया मतलब 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट 3, 2 2s are 4 and root 3 into root 3 will be 3. So 3 multiplied by 4 will be your 12 and root 5 का स्क्वायर करेंगे तो it will be your 5. और 12 और 5 को यदि हम ऐड करते हैं तो हमारे पास 17 आ जाता है. सो व्हाट वी विल बी डूइंग इज हम इस 17 को लिखेंगे 12 plus 5. इधर वी कैन राइट 5 plus 12 ऑल्सो. 5 plus 12 लिखा माइनस इसको लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 5. 4 को लिखा 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, रूट 15 को लिखा रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5. वी कैन राइट दिस एज. Now again the same thing we have to follow over here also. Again यहाँ माइनस का साइन है यानी कि ये वाला जो पार्ट है वो 2ab में कन्वर्ट होना है, यानी कि 2ab की वैल्यू 2 रूट 15 होनी है. अब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, यानी ab की जो वैल्यू है वो रूट ऑफ 15 होनी है. रूट ऑफ 15 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 5 लिख सकते हैं. अब हमने क्या करना है, 3 और 5 को यदि हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 8 आ रहा है, यानी 8 को हम लिखेंगे 3 प्लस 5 माइनस 2 इंटू रूट 15 को लिखा रूट ऑफ 3 इंटू रूट ऑफ 5.
नाउ इस 5 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ऑफ 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। रूट ऑफ 5 को यदि हम रूट ऑफ 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 5। तो हमने 5 को लिखा रूट ऑफ 5 का स्क्वायर। 12 को लिखा हमने 2 रूट 3 का स्क्वायर। 2 रूट 3 को हम 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 12 आता है। 2 इंटू 2 इज 4 एंड 4 रूट 3 इंटू रूट 3 विल बी 3। सो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 विल बी और 12। यानी कि हमने 12 को लिख सकते हैं 2 रूट 3 का स्क्वायर। 2 रूट 3 को यदि हम 2 रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी विल बी गेटिंग 12 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट ऑफ 5 एज इट इज वी हैव रिटन, प्लस 3 को हम क्या लिखेंगे, रूट 3 का स्क्वायर। 5 को क्या लिखेंगे, रूट 5 का स्क्वायर माइनस ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय रूट 3 मल्टीप्लाइड बाय रूट 5। हमें पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। ये है आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखें यदि a की वैल्यू इस वाले पार्ट में, a को मैं अज्यूम कर लूं रूट ऑफ 5, b को मैं अज्यूम कर लूं 2 रूट 3, तो ये a रूट 5 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b 2 रूट 3 b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। ये फॉर्मूला बन रहा है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। a अज्यूम किया है मैंने रूट 5 और b अज्यूम किया है मैंने 2 रूट 3। सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो गया आपका a माइनस b का होल स्क्वायर। यानी इसको लिखा जा सकता है a माइनस b का होल स्क्वायर। दिस could be written as a minus b का होल स्क्वायर। नाउ दिस पार्ट अगेन, अगर यहाँ पे मैं a की वैल्यू अज्यूम करूं रूट 3 और b की वैल्यू मैं अज्यूम करूं रूट ऑफ 5, तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, दैट विल बी योर a माइनस b का होल स्क्वायर। सो दिस कुड बी रिटन एज योर a माइनस b का होल स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट का साइन है। अगर स्क्वायर रूट का साइन को मैं रिमूव करूंगी तो पावर विल बी और 1/2। पावर क्या आएगी, 1/2 आएगी। यदि हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं साथ में स्क्वायर भी है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट का साइन कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज दिस कुड बी रिटन एज रूट ऑफ 5 माइनस 2 रूट 3 का होल स्क्वायर है ये। अगर स्क्वायर रूट का साइन रिमूव करेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 1/2 आ जाएगी। तो ये पावर कैंसिल हुई, मतलब इसको हम लिख सकते हैं रूट ऑफ 5 माइनस 2 रूट 3। So this could be written as root of 5 minus 2 root 3. Similarly इस वाले पार्ट को यदि हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर है और ये स्क्वायर रूट का साइन है, दोनों रिमूव हो जाएंगे। So this part will be on plus of root 3 minus root of 5. ये पार्ट हो गया सॉल्व। रूट 5 एंड रूट 5 एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे माइनस का 2 रूट 3 है, प्लस का रूट 3 है। अगर माइनस के 2 रूट 3 और प्लस के रूट 3 को हम ऐड करेंगे सो इट विल बी योर माइनस ऑफ रूट 3 विल बी द आंसर। माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 3। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, माइनस 2 रूट 3 प्लस रूट 3, इन दोनों में ही रूट 3 कॉमन आ रहा है, रूट 3 हमने कॉमन लिया, इसमें क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, इसमें रूट 3 कॉमन लेने पे प्लस का 1 बचेगा। माइनस 2 प्लस 1 सॉल्व करेंगे तो इट विल बी -1। -1 को रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का रूट 3 विल बी द आंसर। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट, राइट। a माइनस बी का होल स्क्वायर हुआ तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा और हमारा फाइनल आंसर माइनस का रूट 3 आ जाएगा। यदि ये आंसर हमारे ऑप्शंस में से मैच नहीं कर रहा है सो इट कुड इवन बी रिटन एज योर माइनस ऑफ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमने रूट 5 का स्क्वायर था, 2 रूट 3 का स्क्वायर था, माइनस 2ab था, तो हम इसको 2 रूट 3 माइनस ऑफ रूट 5 का स्क्वायर भी लिख सकते थे। इसको हम रूट 3 2 रूट 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर भी लिख सकते थे। इसको भी हम प्लस में रूट 5 माइनस ऑफ रूट 3 का स्क्वायर भी लिख सकते थे। अगर हम इस पार्ट को सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें हमारा आंसर सेम ही आने वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सो इट इज गोइंग टू कम सेम। सो हम इसको ये भी लिख सकते थे, सो 2 रूट 3 इसका स्क्वायर रूट भी है तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा ये वाला साइन, तो और इट विल बी 2 रूट 3 माइनस ऑफ रूट 5 प्लस रूट ऑफ 5 माइनस ऑफ रूट 3। तो इस केस में हमारा आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव रूट 3 आएगा, यानी कि पॉजिटिव रूट 3 हो या नेगेटिव रूट 3 हो, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ
दिस मच ऑफ पार्ट. दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व इट. ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे. Now the next is a upon b raised to the power x minus 1. It is equivalent to b upon a raised to the power x minus 3. We have to find the value of x. See यहाँ पे a upon b है, यहाँ पे b upon a है. हम पावर्स को तब कंपेयर कर सकते हैं जब हमारे बेसिस सेम हो LHS और RHS में. तो बेसिस को सेम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे तो बेस सेम हो जाएगा. रेसिप्रोकेट करेंगे तो हमारी पावर क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी. वी हैव लर्न कि अगर a raised to the power minus m है, it could be written as 1 upon a raised to the power m. राइट, तो अगर a raised to the power m है, पॉजिटिव है, तो हमें यदि इसको रेसिप्रोकेट करना है तो वी कैन डू इट लाइक दिस ऑल्सो. हमने बेस को रेसिप्रोकेट कर दिया और पावर क्या होगी, पॉजिटिव की जगह निगेटिव हो जाएगी. सो यहाँ पे भी हम यही करेंगे. a अपॉन b को हमने एज इट इज रखा, इसको हमने रेसिप्रोकेट किया. यहाँ पे जो बेस b अपॉन a है उसको हमने a अपॉन b कर दिया. माइनस से चेंज कर देंगे पावर को, माइनस ऑफ x माइनस 3 हो जाएगा. क्योंकि हमने बेस को रेसिप्रोकेट किया है तो हमारी जो पावर है वो निगेटिव हो जाएगी. सो माइनस विल बी मल्टीप्लाइड बाय और x माइनस 3. अब देखें तो हमारे दोनों तरफ बेसिस सेम है तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. सो इट विल बी, पावर्स को यदि हमने इक्वेट किया सो इट विल बी x माइनस 1 विल बी इक्विवेलेंट टू, माइनस को x से मल्टीप्लाई किया तो माइनस ऑफ x, माइनस को माइनस 3 से किया तो प्लस ऑफ 3. नाउ इस x को हमने इधर लिया, x प्लस x इज इक्वल टू 3, माइनस 1 जो होगा वो प्लस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा. सो इट विल बी 2x इज इक्विवेलेंट टू 4, और वी कैन से वैल्यू ऑफ x विल बी 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज योर 2. So this is how these type of questions are solved, and these are the questions which are asked in various competitive examinations. Now let's understand some more questions. If x is equivalent to 5 plus 2 root 6, then what will be the value of root x minus 1 upon root x? See, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की फाइंड आउट करनी है, और हमें x की वैल्यू गिवन है. तो जब इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे सो व्हाट वी कैन डू इज, ये जो रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स है, यदि हम इसका स्क्वायर करें, बिकॉज हमारी वैल्यू x की गिवन है, x हमें कैसे मिलेगा, जब हम रूट x का स्क्वायर करेंगे. सो यदि हम रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर करें तो इट विल बी a माइनस b होल स्क्वायर. And what is the identity for a minus b whole square? Just now we have seen that it could be written as a square plus b square minus 2ab. यहाँ पे a की वैल्यू है रूट एक्स और b की वैल्यू है 1 अपॉन रूट एक्स. तो a का स्क्वायर किया, दैट विल बी योर रूट एक्स का स्क्वायर विल बी x. 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर किया, इट विल बी 1 अपॉन एक्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. a था रूट एक्स और b है 1 अपॉन रूट एक्स, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. सो माइनस का 2, a की वैल्यू है रूट एक्स और b की वैल्यू है 1 अपॉन रूट एक्स. बोथ आर गोइंग टू कैंसिल, इट विल बी और माइनस ऑफ 2. तो हम यदि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी x प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2, इसकी वैल्यू होगी. अब x की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो 1 अपॉन एक्स का मतलब क्या हुआ, 1 अपॉन एक्स विल बी 1 अपॉन 5 प्लस 2 रूट 6, इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो जब भी डिनोमिनेटर में आपका रेडिकल साइन होगा तो व्हाट वी डू इज वी रेशनलाइज इट. अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो रेशनलाइज करने के लिए वी विल बी मल्टीप्लाइंग इट बाय और नेगेटिव साइन. सो इट विल बी 5 माइनस 2 रूट 6 डिवाइडेड बाय और 5 माइनस 2 रूट 6, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया उसी से डिवाइड भी कर दिया. यहाँ पे प्लस का साइन था तो वी हैव टेकन माइनस साइन. Now 1 multiplied by 5 minus 2 root 6 will be your 5 minus 2 root 6. And ये क्या बन गया आइडेंटिटी, a plus b, a minus b. We know that a plus b multiplied by a minus b is your a square minus b square. यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 5 है, so 5 का स्क्वायर करेंगे तो it will be your 25 minus b स्क्वायर. b क्या है, 2 रूट 6 है. अगर हमने 2 रूट 6 को 2 रूट 6 से मल्टीप्लाई किया, so 2 multiplied by 2 will be your 4 and root 6 multiplied by root 6 will be 6. So 6 4 is 24. तो हमारे 2 रूट 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 24. So 25 minus 24 will be 1. That means 1 upon x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 minus 2 root 6. डिनोमिनेटर को हमने इग्नोर कर दिया because 25 minus 24 will be 1. So denominator is 1, so we have taken it equivalent to your 5 minus 2 root 6. ये हो गई हमारे पास 1 upon x की वैल्यू.
तो अब यदि हम इस पार्ट को सॉल्व करें, सो इट विल बी रूट ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स के स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी? एक्स है हमारे पास 5 प्लस 2 रूट 6, एक्स की वैल्यू हमने ले ली, ये प्लस 1 अपॉन एक्स, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है? प्लस 5 माइनस 2 रूट 6, ये हमने 1 अपॉन एक्स की वैल्यू ले ली, माइनस ऑफ 2, सो माइनस ऑफ 2 ले लिया। नाउ प्लस 2 रूट 6 माइनस 2 रूट 6 कैंसिल हो जाएंगे, 5 प्लस 5 विल बी योर 10 एंड 10 माइनस 2 विल बी योर 8, यानी कि रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स के स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? 8 होगी। लेकिन हमें वैल्यू तो रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स की चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इस पूरी इक्वेशन का, यानी रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का होल स्क्वायर इज इक्विवेलेंट टू जो 8 है उसका क्या कर देंगे? स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। यदि इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 एंड 1 अपॉन 2 आर गोइंग टू कैंसिल, इसका यदि स्क्वायर रूट किया दैट मीन्स रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर रूट किया, इट विल बी इक्विवेलेंट टू स्क्वायर रूट ऑफ 8। अब ये स्क्वायर रूट का साइन मतलब पावर 1 अपॉन 2, 2 इंटू 1 अपॉन 2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स आ गई। इट इज इक्विवेलेंट टू रूट ऑफ 8, 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, यानी कि एक पेयर है हमारे पास 2 का, सो 1 2 विल कम आउट ऑफ द स्क्वायर रूट साइन, स्क्वायर रूट ऑफ 8 विल बी स्क्वायर रूट ऑफ दिस, सो हमारे पास ऑलरेडी एक 2 का पेयर है, तो 1 2 विल कम आउट ऑफ द स्क्वायर रूट साइन एंड रिमेनिंग विल बी इनसाइड द स्क्वायर रूट साइन, सो रूट 8 कुड बी रिटन एज योर 2 रूट 2। तो इस तरीके से रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 2 रूट 2 होगी। Now the next question is, suppose 4 raised to the power a is equal to 5 है, 5 raised to the power b की वैल्यू 6, 6 raised to the power c की वैल्यू 7, 7 raised to the power d की वैल्यू 8 है, तो a b c d की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए 8 की वैल्यू क्या है? 7 raised to the power d है, 7 की वैल्यू अगेन हमारे पास है, फिर हमारे पास 6 की वैल्यू भी है, फिर हमारे पास 5 की वैल्यू भी है, तो हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे? यहाँ से करेंगे। तो 8 है इक्वल 7 raised to the power d के, 8 किसके इक्वल है? 7 रेज टू द पावर d के। 7 किसके इक्वल है? 6 रेज टू द पावर c के। तो हम 7 की जगह क्या लिख सकते हैं? 6 रेज टू द पावर c लिख सकते हैं एंड होल रेज टू द पावर जो d था। अब पावर्स क्या होंगी? मल्टीप्लाई हो जाएंगी, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n इज a रेज टू द पावर m into n, सो इट इज योर 6 रेज टू द पावर cd। अब 6 को क्या लिख सकते हैं? 5 रेज टू द पावर b लिख सकते हैं, तो 6 को हमने लिखा 5 रेज टू द पावर b और होल की पावर सी डी तो है ही, अगेन पावर्स विल बी मल्टीप्लाइड, सो इट विल बी 5 रेज टू द पावर बी सी डी। अब हम 5 को क्या लिख सकते हैं? 4 रेज टू द पावर ए, तो हमने 5 को लिखा 4 रेज टू द पावर ए होल रेज टू द पावर बी सी डी, दैट मीन्स 4 रेज टू द पावर ए बी सी डी। ये किसके इक्वल है? 8 के इक्वल है, तो 8 इज इक्विवेलेंट टू 4 रेज टू द पावर ए बी सी डी। Now we know कि 8 को भी हम 2 की टर्म्स में लिख सकते हैं और 4 को भी हम लिख सकते हैं। 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 और 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 रेज टू द पावर 2 एंड होल रेज टू द पावर योर ए बी सी डी, यानी कि 2 रेज टू द पावर 3 इज इक्विवेलेंट टू 2 रेज टू द पावर 2 ए बी सी डी। अब LHS और RHS में बेसिस सेम हो गए, यानी कि पावर्स भी इक्वल हो जाएंगी, यानी 3 इज इक्विवेलेंट टू 2 टाइम्स ऑफ ABCD, और वी कैन से वैल्यू ऑफ ABCD इज 3 अपॉन 2, सो वैल्यू ऑफ ABCD विल बी योर 3 अपॉन 2। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 रूट 3 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 243, इट इज इक्विवेलेंट टू 24.249, then what will be the value of root of 192 plus 15 root of 3? So see, पहले तो हमारा 243 है, इसको हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे और इसको हम कन्वर्ट करेंगे जिस भी फॉर्म में वो आ सकता है। 243 जो लोएस्ट फॉर्म में आ सकता है उसमें हम कन्वर्ट करेंगे। सो 243 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 7 3 8 is 24, 3 1 is 3, 3 2s are 6, 3 7 is 21, 3 9 is 27, 3 3s are 9, 3 1 is 3। सो हम 243 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें इसका निकालना क्या है? स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट निकालना है मतलब हमें 2 2 के पेयर्स बनाने हैं। एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, इस पेयर से एक 3 आउट हो गया, इस पेयर से भी एक 3 आ जाएगा हमारे पास, टोटल 3 इंटू 3 9 हो गया इतने से। लेकिन ये 3 अनपेयर्ड है,
यानी 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 9√3 लिख सकते हैं, क्योंकि एक 3 अनपेयर्ड है। इन दोनों पेयर में से हमने एक 3 ले लिया, इन दोनों पेयर में से हमने एक 3 ले लिया, तो 3 into 3 9 हो गया, और ये वाला 3 अनपेयर्ड है, सो 243 could be written as 9√3। अभी हमने लिखा 5√3 प्लस 243 को लिखा रूट ऑफ 243 को 9√3, इसकी वैल्यू हमें गिवन है 24.249। 9 प्लस 5 √3 कॉमन ले लेंगे, 5 प्लस 9 करेंगे तो 14 हो जाएगा, सो इट इज योर 14√3 की वैल्यू है 24.249, यानी कि √3 की वैल्यू क्या आएगी, 24.249 डिवाइडेड बाय योर 14। If we are going to solve it further, its value will be approximately 1.732। √3 की वैल्यू इसको सॉल्व करने पर, ऑल्दो √3 की वैल्यू होती ही 1.732 है, बट डायरेक्टली वी कैन नॉट टेक बिकॉज इट इज नॉट गिवन टू यू इन द क्वेश्चन। सो फ्रॉम दिस कंडीशन वी विल बी फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ √3 एंड द वैल्यू ऑफ √3 विल कम इक्विवेलेंट टू योर अप्रोक्सीमेट 1.732। नाउ अब हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है। अगेन 192 को हम प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 192 को हमने प्राइम फैक्टराइज किया, सो 2 8 is 16, 2 9 is 18, 2 9 is 18 and 2 6 is 12, 2 4 is 8, 2 8 is 16, 2 2s are 4, 2 4 is 8, 2 1 2 2, 2 6 12, 2 3s are 6 and 3 1। अगेन हमें निकालना स्क्वायर रूट था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 192 मतलब हमें 2 2 के पेयर्स बनाने, एक पेयर हमारा ये बना, एक पेयर हमारा ये बना और एक पेयर ये बना। 3 जो है वो अनपेयर्ड है, इस पेयर में से एक 2 बाहर आया, इस पेयर में से एक 2 बाहर आया, इस पेयर में से एक 2 बाहर आया, तो 2 into 2 will be 4, 4 into 2 will be your 8, 8√3 will be the value of root of 192। रूट ऑफ 192 की वैल्यू क्या होगी, 2 2 4 4 2 8, 8√3, क्योंकि ये वाला 3 अनपेयर्ड है, यानी इसको हम लिख सकते हैं 8√3 लिख सकते हैं रूट ऑफ 192 को। ये है हमारे पास 15√3। अगेन √3 दोनों में से कॉमन आया, 15 प्लस 8 किया तो इट विल बी योर 23, 23√3 आ गया। √3 की वैल्यू अभी अभी हमने देखा, इट इज 1.732। सो 23 को 1.732 से इफ वी विल बी मल्टीप्लाइंग वी विल बी गेटिंग 39.836। So this is how whatsoever is given to you in the question, we can solve the further. We can solve the question further and we can find the value of your unknown. Whatsoever is required, we can find its value. Now let's understand the last 3 questions from the topic. So here is the question number 10. If x raised to the power 1 upon p is equivalent to y raised to the power 1 upon q is equivalent to z raised to the power 1 upon r, and x, y, z is equivalent to 1, then what will be the value of p plus q plus r? See, x raised to the power 1 upon p equal है y raised to the power 1 upon q के, और ये equal है z raised to the power 1 upon r के। तो हम assume कर लेते हैं कि x raised to the power 1 upon p, y raised to the power 1 upon q और z raised to the power 1 upon r किसी भी एक वैल्यू के इक्विवेलेंट है, सपोज k के इक्वल है। अब यदि हम फर्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट को लें, x रेज टू द पावर 1 अपॉन p इज इक्विवेलेंट टू k करें, तो x की वैल्यू क्या होगी, x की पावर 1 अपॉन p है, इसकी वैल्यू k के इक्वल है, यानी यदि हम इसकी LHS और RHS की होल की पावर p कर दें, यानी कि x रेज टू द पावर 1 अपॉन p की भी पावर p करें एंड k की भी पावर p कर दें, दैट वी कैन डू। सो p एंड 1 अपॉन p आर गोइंग टू कैंसिल, सो x की वैल्यू क्या होगी, k रेज टू द पावर p हो जाएगी। इसी तरीके से यदि हम इन दोनों पार्ट्स को लें, y रेज टू द पावर 1 अपॉन q इज इक्विवेलेंट टू k लें, तो y की वैल्यू क्या होगी, k रेज टू द पावर q हो जाएगी। सिमिलरली यदि इन दोनों पार्ट्स को लें तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, z अपॉन 1 z रेज टू द पावर 1 अपॉन r की वैल्यू k है, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, k रेज टू द पावर r हो जाएगी। ये हो जाएगी x की वैल्यू k रेज टू द पावर p, y की वैल्यू k रेज टू द पावर q हो जाएगी और z की वैल्यू k रेज टू द पावर r हो जाएगी। तो हमने x y z को सबकी वैल्यू को हमने k के रिस्पेक्ट में निकाल लिया। अब हमें गिवन है कि x y z की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू क्या है, k रेज टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाय y की वैल्यू है k रेज टू द पावर q मल्टीप्लाइड बाय z की वैल्यू है k रेज टू द पावर r, और इनके प्रोडक्ट की वैल्यू 1 हमें गिवन है।
जब बेसिस सेम होते हैं, बीच में मल्टीप्लीकेशन साइन होता है, तो वी नो दैट द पावर्स आर गोइंग टू बी एडेड. सो दिस विल बी योर k रेज टू द पावर p प्लस q प्लस r. और यदि किसी भी बेस की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, यानी 1 को हम लिख सकते हैं k रेज टू द पावर 0. k रेज टू द पावर 0 मीन्स योर 1 ओनली. सो यहाँ पे हमारे बेसिस सेम हो गए तो हम पावर्स को इक्वेट कर सकते हैं. सो इट विल बी p प्लस q प्लस r विल बी इक्विवेलेंट टू योर 0. सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज if x is equivalent to 2 minus root 3, then value of x raised to the power 3 minus x raised to the power minus 3. x raised to the power minus 3 could even be written as 1 upon x raised to the power 3. So see, ये है x cube minus y cube basically, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं x cube minus 1 upon x cube. ये क्या हो गया, a cube minus b cube हो गया. And we know that x minus 1 upon x का whole cube, if we are going to find a minus b का whole cube, the identity will be a minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3ab a minus b. This is the identity. A minus b whole cube is a cube minus b cube minus 3ab a minus b. This is the identity. So if instead of a we are going to keep x, and if instead of b we are going to keep 1 upon x, so x minus 1 upon x के whole cube की वैल्यू क्या होगी, a cube that is your x cube minus b cube that means 1 upon x cube. इसी की वैल्यू हमें चाहिए minus 3ab minus 3, a की वैल्यू है x, b की वैल्यू है 1 upon x. In the bracket a minus b, that is your a is x and b is your 1 upon x. This x and this x is going to cancel. So value of x minus 1 upon x का whole cube will be x cube minus 1 upon x cube minus 3x minus 1 upon x. ये हमारा आइडेंटिटी हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा. मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स के होल क्यूब की वैल्यू हो जाएगी x क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 1 अपॉन एक्स. इस पार्ट की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसकी वैल्यू में फाइंड आउट करनी है. यानी x हमारे पास ऑलरेडी है 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3, ये x की वैल्यू है. अब यदि हम 1 अपॉन एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, यदि x की वैल्यू है हमारे पास 2 माइनस रूट 3, तो 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 1 अपॉन 2 माइनस रूट 3. अगेन डिनोमिनेटर में यदि आपका रेडिकल साइन है तो वी विल रेशनलाइज इट. यहाँ पे माइनस का साइन है तो वी विल मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाय पॉजिटिव साइन. 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई और 2 प्लस रूट 3 से डिवाइड कर देंगे. 1 को 2 प्लस रूट 3 से मल्टीप्लाई किया तो इट विल बी 2 प्लस रूट 3 ओनली. इट इज योर a माइनस b a प्लस b, a प्लस b a माइनस b इज योर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ये आइडेंटिटी हमने देखी थी अभी, a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. a की वैल्यू क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर विल बी 4 माइनस b की वैल्यू क्या है, रूट 3 एंड रूट 3 का स्क्वायर विल बी योर 3. 4 माइनस 3 इज योर 1, सो डिनोमिनेटर को हम इग्नोर करते हैं. इट्स वैल्यू 1 अपॉन एक्स विल बी योर 2 प्लस रूट 3. ये हमारे पास 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई. अब सी हमारा यहाँ पे भी x माइनस 1 अपॉन एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा x माइनस 1 अपॉन एक्स आ रहा है. x की वैल्यू है हमारे पास, 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी है हमारे पास. सो x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू है 2 माइनस रूट 3 माइनस y की वैल्यू 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 प्लस रूट 3. तो ये हमारी हो गई 1 अपॉन एक्स की वैल्यू. ये हमने x की वैल्यू ली माइनस साइन 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड करी, इट इज योर 2 प्लस रूट 3. अब यदि हम इसको सॉल्व करें, माइनस 2 एंड इट इज योर माइनस ऑफ रूट 3. माइनस रूट 3 माइनस दिस 2 एंड माइनस 2 आर गोइंग टू कैंसिल. माइनस रूट 3 विल बी माइनस ऑफ 2 रूट 3. दिस विल बी द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन एक्स. अब इस x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हम इसमें रखते हैं, इस फॉर्म में रखते हैं. तो यहाँ पे x माइनस 1 अपॉन एक्स है, यानी कि माइनस का 2 रूट 3 का क्यूब. इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. सो वी आर कीपिंग इट एज इट इज. माइनस 3 x माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है माइनस ऑफ 2 रूट 3. इस वाले पार्ट को हम इधर ले जाएंगे क्योंकि हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो माइनस 2 रूट 3 का क्यूब,
-2√3 का क्यूब मीन्स -2√3 इंटू -√3 इंटू -2√3. सो माइनस को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं. फाइनल आंसर विल बी योर माइनस ओनली. 2 into 2 will be 4. 4 into 2 will be your 8. √3 into √3 will be your 3. And this √3 is remaining. So 8 3s are 24. Minus 24 √3 will be the value of -2√3 का क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -24 √3 हो जाएगी. सो इट इज -24 √3. ये वाला पार्ट कितना होगा? माइनस माइनस प्लस हो गया. प्लस 3 into 2 विल बी और 6 √3. ये वाला पार्ट क्या है? प्लस का 6 √3. लेकिन इसको हम यदि LHS में लेके जाएंगे तो दिस विल बी -6 √3 एंड इट इज इक्विवेलेंट टू x क्यूब minus 1 upon x क्यूब. -24 √3 -6 √3 will be minus of 30 √3. It is the value of x cube minus 1 upon x cube. इसी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी and its value will be -30 √3. सो अगर क्यूब में है तो हमें क्यूब निकालना होगा. अगर स्क्वायर में है जैसे हमने पहले क्वेश्चन देखा था तो वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर. Accordingly we will be deciding it and solving it further. So the last question is find the value of √5, then again √5, then again √5, then again √5. So सबसे पहले हम क्या करेंगे? जो इनर मोस्ट √5 है उसकी वैल्यू रखेंगे एंड देन वी विल कम आउटसाइड. सो सबसे पहले हमने क्या किया? इस √5 को ऐसा रखा, इसको भी ऐसे ही रखा. इस वाले √5 में इस 5 को तो हमने ऐसे ही रखा. इस √5 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 raised to the power 1/2 लिख सकते हैं. तो इस √5 को हमने लिखा मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power 1/2. बेसिस सेम है तो पावर्स क्या होंगी? ऐड हो जाएंगी. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power 1/2. दिस इज द पार्ट. अगर इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे 5 raised to the power 1 even we can say. So 5 raised to the power 1 multiplied by 5 raised to the power 1/2. बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. So 5 raised to the power 1 plus 1/2. 2 will be the LCM. 2 plus 1 will be 3/2. So it is your 5 raised to the power 3/2. ये इस पार्ट की वैल्यू आई. अब इसका स्क्वायर रूट भी है साथ में. इस पार्ट का स्क्वायर रूट भी है तो स्क्वायर रूट का साइन हटाएंगे तो पावर विल बी और 1/2 यानी कि इट्स वैल्यू विल बी 3/2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 से. सो 5 raised to the power 3/4 हो जाएगा इस पार्ट की वैल्यू. नाउ सॉल्व इट फर्दर. ये 5 ये 5 इस पार्ट की वैल्यू 5 raised to the power 3/4 है. अंदर के इसकी पार्ट की वैल्यू 5 raised to the power 3/2 थी. फिर स्क्वायर रूट का साइन हमने रिमूव किया तो 1/2 ले लिया. 5 raised to the power 3/4 हो गई. तो इस पार्ट की वैल्यू हो गई 5 raised to the power 3/4. अगेन वी विल बी सॉल्विंग दिस पार्ट. ये है हमारा 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 raised to the power 3/4 का स्क्वायर रूट. राइट, पहले हम इस पार्ट को सॉल्व करते हैं. मल्टीप्लाई का साइन है, पावर्स बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. 5 raised to the power 1 plus 3/4. 4 will be the LCM. 4 plus 3 will be your 7/4. This will be 5 raised to the power 7/4. नाउ स्क्वायर रूट साइन भी है, स्क्वायर रूट साइन रिमूव करेंगे तो पावर 1/2 हो जाएगी. सो 5 raised to the power 7/8 इट विल बी. सो इस पार्ट की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास? √5 मल्टीप्लाइड बाय ये पार्ट की वैल्यू हुई 5 raised to the power 7/8. अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे. बेसिस अगेन सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो 5 raised to the power 1 plus 7/8 पावर्स ऐड हो जाएंगी. सो 8 विल बी द LCM. 8 plus 7 7 7 14 15/8 हो गया. 5 raised to the power 15/8. अब इसका भी अगेन स्क्वायर रूट साइन है, मींस पावर विल बी और 1/2. सो 5 raised to the power 15/8 into 2 will be your 16. So its value will be 5 raised to the power 15/16. This is how, using the concepts of your laws of exponents, laws of Schertz and your indices, we will be solving various questions. All these were the questions which were asked in various competitive examination, and we have tried to select different type of question so that your concepts would be clear. This is all from this topic. Soon we'll be coming with the more topics of your competitive examination. Thank you.